मल्टीप्लिकेटिव स्टडीज उसमें इन्वॉल्व है, कितने सारे डायमेंशन इन्वॉल्व है उसमें, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है उसमें, हेल्थ साइंसेज इन्वॉल्व है उसमें, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है उसमें, एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वॉल्व है, किस टाइप का सीड आप खा रहे हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक सिंगल चपाती जो आपकी प्लेट में रखी हुई है उसके पीछे कितने सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व है। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। जिस कंट्री की जितनी डेवलप्ड और पावरफुल एजुकेशन होगी उतनी ही कम कीमत की मोस्ट न्यूट्रिशियस रोटी आपकी प्लेट में आएगी। अगर किसी कंट्री की एजुकेशन वीक है, अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, तो वीट को प्रोसेस करने के लिए अच्छी मशीनरी नहीं बना सकते। अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं है तो वो अच्छा क्वालिटी का सीड नहीं बना सकते। अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं है तो वो एक सही टेक्निक नहीं बता सकते कि उस वीट को कैसे प्रोसेस किया जाए सो दैट द न्यूट्रिशंस कैन बी मेंटेन्ड। आपकी प्लेट में जो चपाती अब पहुंचेगी, that will not be so nutritious, that will not be so tasty, that will not be so good. So this is what education does to the entire country. This is what education does to humanity. Education के पीछे ऐसे ही नहीं भागते। You can take any particular example from real life, right from the morning you wake up and the till time you go to bed, even brushing your teeth or anything, everything involves a number of disciplines behind it. Engineering है, science है, management है, marketing है, everything is there. And that combination serves the ultimate product. चाहे वो product की बात कर रहा हूँ, चाहे service industry की बात कर रहा हूँ, anything. So this topic which I am telling you, permutation and combination, caters to a very powerful branch of maths which is called probability theory. Or probability theory helps you in making decisions which are less risky, which reduces the risk of failure. That's why this topic is very important to study. Why we are covering it here? There are people from various backgrounds. कुछ लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में पढ़ा होगा, आजकल आईसीएसई बोर्ड में क्लास 8th में है। कुछ लोगों ने उससे पहले पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो सोचा होगा इसकी यूटिलिटी क्या है। व्हाई समबडी इज टीचिंग मी दिस? आई कांट मेक ए कोरोना वैक्सीन आउट ऑफ इट, यू कांट, बट एटलीस्ट if you can calculate the probability of spread of a coronavirus, you can take preventive measures. So this is where permutation combination is used. Now somebody say corona vaccine ban sakta hai permutation combination use karke? Direct to nahi ban sakta, but it has a role to play. It has a huge role to play. It is going to tell that any particular medicine can react in how many possible total ways. Two medicines can react how many total possible ways, और उनमें से कौन से important options हैं which need to be explored. So permutation combination is a thing which produces all the possible alternatives. Alternatives समझते हैं क्या होते हैं? Alternatives are for any particular problem when I know every possible step that I can make. Permutation combination helps you in counting them. Doesn't matter in medical sciences, defense services, marketing, HR, anywhere. It tells you all the possibilities that lie in a particular problem, that lies with a particular principle. अब एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। The first and foremost counting principle is known as a multiplication rule. So let us suppose, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, but still I'm sitting in Delhi, and let's say I want to travel to Meerut, and from there I want to travel to Dehradun. Now, okay, there are two possible ways, two possible roads which I can take to reach to Meerut. That means road number 1 and road number 2. This could be an expressway, it could be an intercity road. And there are three possible routes from which I can use to go from Delhi to Dehradun. That is named numbered as 3, 4, 5. Ab, simple multiplication principle, my objective is to reach from Delhi to Dehradun. But I want to know that how many total possibilities I have. So in total, there are two possibilities or two routes by which I can reach to Meerut. There are 3 routes by which I can reach to Dehradun, and there are total 6 possibilities by which I am reaching from Delhi to Dehradun. And these routes would be 1 and 3. That means मैं पहले दिल्ली से मेरठ इस रोड को लेके जाऊं और फिर मेरठ से देहरादून इस रोड से, या 1 and 4 या 1 and 5. Same way 2 and 3, 2 and 4 और 2 and 5. अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए। ये मैक्सिमम possibilities हैं which I can do.
अब इन पॉसिबिलिटीज को मैं एक्सप्लोर करूंगा पहले ही घर पे बैठ के। कौन सा रोड ज्यादा लंबा है, कहां पे बम्प्स ज्यादा हैं, या विच रोड हैज लेस नंबर ऑफ टोल्स, and then I will pick up the best combination for me. Perhaps it is 1 and 4. Then I'll pick up the best combination. बेस्ट कॉम्बिनेशन पिक करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास सारे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, और ये ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूस करते हैं मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन रूल, सेकंड प्रिंसिपल है परम्यूटेशन, और थर्ड प्रिंसिपल है कॉम्बिनेशन। तो ये तीन काउंटिंग प्रिंसिपल्स पे अगर मेरी कमांड है, देन आई विल बी इन अ पोजीशन टू लिस्ट all possible outcomes of a particular event to happen. अब मल्टीप्लिकेशन रूल जनरली कहां पे अप्लाई होता है? जनरली व्हेन वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट। तो मुझे दिल्ली से देहरादून जाना था, बट आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट मींस इन फर्स्ट पार्ट आई विल रीच फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, एंड सेकंड पार्ट आई विल रीच फ्रॉम मेरठ टू देहरादून। और फिर मैंने सो a big work is broken into several parts, and reaching from step 1 to step 2 to step 3 to step 4, all the possibilities are counted and multiplied. This is called simple multiplication rule. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस प्रिंसिपल को कहां पे अप्लाई करना है। दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन विच प्लेस ह्यूमन माइंड। तो यहां पे थोड़ा सा आपको दैट विल कम ओनली थ्रू प्रैक्टिस। थोड़ा बहुत हिंट तो मैथ्स में मिल जाता है कि विच प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड, बट जनरली इट हैज टू कम फ्रॉम प्रैक्टिस कि कहां पे क्या अप्लाई आपको करना है। सो द फर्स्ट रूल इज प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ और फर्स्ट रूल इज नोन एज अ multiplication rule, in which a particular event is broken down into smaller parts, and these smaller parts are then multiplied further. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। that is not a big particular thing. किसी भी particular project को अगर आप कर रहे हैं, तो उस particular project को करते टाइम what exactly is how many parts you can break it, and after breaking into certain parts, then reaching from one layer to second layer, how many ways you can do that, second to third, how many ways you can do that. अब जैसे शॉप का एग्जांपल लेते हैं। पहले सबसे मैंने सोचा there is an idea of shop, from there the first thing is arrangement of funds. अब फंड्स मैं फादर से भी ले सकता हूं, वन वे, बैंक से लोन ले सकता हूं, सेकंड वे। So I'll write it F. That means a loan can be taken from father. Third, किसी outside agency से, जो बाहर money lenders होते हैं, I can take it from a money lender. Fourth, what I can do is I can borrow it from friends. 2-3 friends से combine करके ले लिया। सबसे पहली चीज है finance arrange करना। Finance arrange करने के बाद, let us suppose there are plots that I can purchase. I have to purchase plot or probably a shop, let's say. अब उसमें 6 लोकेशन मेरे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 लोकेशंस मेरे पास हैं, 1 2 3 4 5 6। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर लिस्टेड? छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं या तो फादर से लोन लेके लोकेशन 1 पे शॉप खरीद सकता हूं, फादर से लोन लेके सेकंड लोकेशन पे, थर्ड लोकेशन पे, फोर्थ लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन पे आई कैन ओपन शॉप्स। बैंक से लोन लेके भी ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज एक जगह पेपर पे लिस्ट कर ली, क्या सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और हर एक पॉसिबिलिटी की क्या कॉस्ट आ रही है। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट एनालाइज करके उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी इज B5, यानी मैं बैंक से लोन लूं और 5वीं जगह पे 5th लोकेशन पे शॉप खरीदूं। तो ऑन पेपर ही मेरे पास क्लैरिटी आ गई ना कि मुझे करना क्या है। बाकी ऑप्शन तो मैंने ऑन पेपर एक्सरसाइज करके ड्रॉप कर दिए। दैट मींस हाउ मच क्लियर एंड सॉर्टेड आई एम सिटिंग बाय यूजिंग वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स। आई एम सिटिंग वेरी सॉर्टेड कि अब मेरे को बैंक से लोन लेना है और 5th लोकेशन पे शॉप खरीदनी है। सारे ऑल्टरनेटिव मैंने एक्सप्लोर कर लिए। दिस इज द बेस्ट। अब कोई आपको, अब कम से कम एक स्टेप आप आगे बढ़े ना। नाउ यू आर प्रीटी क्लियर, दिस इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई नीड टू डू। उसके बाद स्टेप 3 आप कर सकते हैं कि शॉप का साइज क्या हो, या प्रॉब्ली कितना इसमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड देन यू कैन राउट द थिंग्स अप। So this is where a very simple problem can be used, multiplication principle can be used to solve a very simple problem. Now let me talk about 2 brothers. In fact, one is permutation और दूसरा है combination. इंपॉर्टेंट चीज है दोनों में डिफरेंस समझना। परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर्स। Pardon me for a wrong spelling if I write it. Otherwise, people just point it out. They will take the screenshot, matters के ऊपर गोला लगा के मुझे भेज देंगे कि सर आपने स्पेलिंग गलत।
डोंट वरी अबाउट इट। यहां पे क्या करना है, ऑर्डर डजंट मैटर। ये बेसिक डिफरेंस है। देखो कैसे, क्लास 6th में आप लोगों को लेके जाता हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर ये प्लेन है कोई एक्स वाई, क्लास 6th की बात कर रहा हूं, किसी ने बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, बीटेक किया हो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैंने किसी पॉइंट की लोकेशन 3 4 से बताई, दिस इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस बाय 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 3 पॉइंट तो ये डिस्टेंस है, और 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स ये डिस्टेंस है। इसका यही तो मतलब हुआ 3 और 4 का। इज इट ओके विद एवरीवन? यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। इसमें तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, पॉइंट की लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाई होती है। यानी अगर मैंने, अब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट अस सपोज दिस डजंट एग्जिस्ट। अगर मैंने 5 6 लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि एक पॉइंट है P, उसकी लोकेशन 5 6 है, तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, हाँ या ना, यस और नो? एंड इफ आई राइट कि दूसरा पॉइंट, ये P1 है, P2, दूसरा पॉइंट है 6 5, क्या P1 और P2 सेम पॉइंट्स हैं, अलग अलग है? आर दे सेम और डिफरेंट? सर सेम। हाँ, सेम। सेम है। अच्छा चलो ठीक है, ये सेम किसने बोला है अभी? कैन यू स्पेल योर नेम? डिफरेंट। हाँ, he said same points। देखो पहला पॉइंट देखो P1, 5 पॉइंट का डिस्टेंस ये और 6 पॉइंट का डिस्टेंस ये आएगा आपका 5 6। दूसरा पॉइंट है 6 5, तो 6 पॉइंट का डिफरेंस ये और 5 पॉइंट का ये आएगा 6 5। दोनों डिफरेंट है या सेम है? आर दे डिफरेंट और सेम? ओके, सो दे आर डिफरेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, किस ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं दैट मैटर्स। किस ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज द थिंग दैट मैटर्स। ऐसा नहीं है कि मैं 5 6 या 6 5 लिख दूं और काम चल जाएगा। नो, इन व्हाट ऑर्डर दे आर रिटन, दैट इज डिफरेंट। तो देखो कितना छोटा सा डिफरेंस अब है। तो मैं कह रहा हूं 3 नंबर हैं, 2 4 एंड 6, और मेरे से कहा गया हाउ मैनी पॉइंट्स on a 2-dimensional plane can be located by using numbers given above। अब यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर मैटर करता है, यानी 2 4 इज नॉट द सेम थिंग एज 4 2। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन। तो ये स्पॉट करने वाली बात है कि यहां पे मैं जो दो दो के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, दो दो का जो एक ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। तो यहां पे ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता, डज इट मैटर और नॉट? तो हाउ मेनी पॉइंट्स, दैट मींस मुझे काउंटिंग प्रिंसिपल लगाना है। ऑर्डर मैटर करता है, so what I am going to do is, I clearly understand that I am going to use permutation। अब परम्यूटेशन के बेसिक्स पे चलते हैं। परम्यूटेशन जनरली कहा जाता है NPR। एन क्या है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो यहां पे कितने हैं, एन की वैल्यू यहां पे 3 है, 3 टोटल नंबर दिए हैं 3। आर होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, कितने नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 2 का। तो आर हो गया कितने का सिलेक्शन करना है, 2 2 का सिलेक्शन करना है। फॉर्मूला इसका कैसा होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल।
ओके, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले n फैक्टोरियल क्या होता है, तो मैं इसको नंबर से लेके चलता हूं। लेट अस सपोज आपके पास 3 फैक्टोरियल है, तो इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट इज गोइंग टू एंड एट 1। जैसे आपके पास 4 फैक्टोरियल है, तो आप इसको लिखेंगे 4 3 2 1, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर। 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। आप इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। तो n फैक्टोरियल कैसे एक्सपेंड हो रहा है, n इंटू n माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन हो गई, फिर n माइनस 2 की हो गई, और ये कहां तक जाता है, 1 तक। ये फैक्टोरियल की एक्सप्लेनेशन है। अब 3 टोटल पॉइंट्स में से 2-2 पॉइंट चूज करके मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन इसकी निकालनी है। तो देखो क्या आएगा, 3p2 इसको लिखेंगे, क्या आएगा ऊपर, 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n की जगह 3 आ गया, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ये आएगा आपका 3 to 1, नीचे 1 फैक्टोरियल, तो 1 into 1 इज नथिंग, दैट मेक्स इट 6। क्या क्या पॉइंट्स होंगे, 6 पॉइंट्स, देखो 2 4 2 6 4 6, अब क्या होंगे 4 2 6 2 एंड 6 4। तो टोटल 6 पॉइंट इन 3 नंबर से आप बना सकते हैं। ओके, इट इज नॉट विजिबल आई थिंक, सो आई राइट इट हियर। Now it is visible. Okay, good. 2 4 2 6 4 6 and then 4 2 6 2 and 6 4। तो ये पॉसिबल टोटल आप परम्यूटेशन नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज द परम्यूटेशन क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, इज इट क्लियर? Yes, sir. That's great. Now I'm going to talk about the next counting principle, which is known as a combination. I'm going to talk about the next thing, which is known as combination. Combination is something like जिसमें order doesn't matter. That means how many ways a team of 2 can be picked from 5 people. How many ways a team of 5 can be picked from 5 people? Team of 2 can be picked from 5 people. Total number of people कितने हैं? 5. Total number of team member जो yes, that is what we are going to do. R कितना है? कितने कितने लोगों का सिलेक्शन होना है? 2-2 लोगों का, because order doesn't matter. तो 5 लोग हैं. I'll write their names. Let's say Amit, Raju, I'll write, that's a good name, or probably Ramesh, and probably somebody called Shreya, and somebody called Rama. So these 1 2 3 4 5 people are there. Now how do I pick it up? अब टीम में 2-2 को पिक करना है, सो हियर ऑर्डर डजंट मैटर, चाहे वो अमित राजू लिखूं टीम को या राजू और अमित लिखूं, बात तो एक ही है ना। सो ऑर्डर डजंट मैटर, सो हियर आई एम गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनसीआर। फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि सिंपली परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, इसको आर फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2, that is going to be 5 factorial divided by 5 minus 2 factorial and then 2 factorial.
थोड़ा सा सॉल्यूशन शॉर्टकट लेके चलेंगे। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल, देन इट इज 2 फैक्टोरियल। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक रोको इसको, नीचे भी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया आपका, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, विच पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड। तो टोटल 10 टीम बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं? अमित और राजू की टीम बन सकती है, अमित एंड रमेश, अमित एंड श्रेया, अमित एंड रमा, फिर और किसकी टीम बन सकती है? देन इट कुड बी राजू एंड रमेश, then it could be Raju and Shreya, then it could be Raju and Rama, then it could be Ramesh and Shreya, Ramesh and Rama, then it could be Shreya and Rama. So in this way you can form exactly 10 teams. तो यहां पे टीम का नाम अमित राजू लिखूं या राजू और अमित लिखूं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां होगा? अब इसको परम्यूटेशन की प्रॉब्लम में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, सो वेयर विल बी द डिफरेंस? द डिफरेंस विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि what we have to do is I have to pick 2 people out of 5, लेकिन फर्स्ट सिलेक्शन will be a team leader। जो पहला सिलेक्शन है वो क्या होगा? टीम लीडर होगा। अब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा? अब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। अब ये प्रॉब्लम हो गई परम्यूटेशन की, क्योंकि जो पहला सिलेक्शन होगा वो टीम लीडर होगा। अब अगर मैं अमित राजू पिक करता हूं तो अमित टीम लीडर होगा, लेकिन राजू और अमित को पिक करूंगा तो राजू टीम लीडर होगा। तो ये परम्यूटेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो यहां पे थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखना है कि परम्यूटेशन की प्रॉब्लम कौन सी है और कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम कौन सी है, सो दैट यू कैन इजिली help yourself out in getting a lot of answers। ठीक है, छोटी सिंपल प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई लिंक मिला हुआ है इंडिया बिक्स का एक क्विज सॉल्व करने का? डिड यू गाइस गेट ए लिंक? वहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व किया आप लोगों ने? No. Okay, so right now I am going to share a link in the chat box, और इस लिंक के ऊपर अभी आपको you will find certain number of problems। ये सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, right? And I am here available for next 10 minutes, and my target कि अगले 10 मिनट में इस लिंक से आप 10 नई प्रॉब्लम सॉल्व करें। I am just sharing it with you in a minute। Okay, did you guys see the problem number 1? I think if you can click on the view answer, you can easily see the answer also. This website is an exclusive and amazing resource to prepare for aptitude tests। I don't know, somebody was using it in the past? कोई यूज कर रहा था इस वेबसाइट को? Yes, sir. Zubair was using it, Divyansh, Shipra, that's good। But did you solve these questions before? Yes, sir. Good। This is an exclusive platform, this website, for preparing। अभी जैसे आप once you are going to come to the campus, lot of companies are there जिनका selection criteria में aptitude test होता है। So you need to prepare। This website is an amazing resource। Anybody who has created it, I should thank the particular person। The answers, the discussion, there are online tests, there are a hell lot of topics related to arithmetic aptitude। This is one of the best websites which I came across for these kind of problems। तो नेक्स्ट क्लास का फॉर्मेट मैं अभी बता देता हूं सबको। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या होगा? एक तो सेट थ्योरी की जो एक्सरसाइज की है उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को डिक्लेयर करके भेज दूंगा, जो आप लोगों ने टेस्ट लिया है। सेकेंड इज जो भी okay, Neha, just try the website India Bix। I'll just write it। तो नेक्स्ट क्लास का फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो भी हमने पिछला सेट थ्योरी का रिजल्ट किया था दैट विल बी डिक्लेयर्ड।
उसके बाद में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द प्रीवियस सेट थ्योरी के प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जो ये प्रैक्टिस सेशन मैं आपको दे रहा हूं आज, ये वेबसाइट मैंने दी है, इसमें जिसको जिस प्रॉब्लम में आ रही है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। और उसके बाद में जैसा सेट थ्योरी का एक आपका टेस्ट हुआ है, द सेम टेस्ट, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट विल बी गिवन एट द नाइट ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। नेक्स्ट क्लास का फॉर्मेट क्लियर है सबको?